इफ़ यू हैवेंट सीन माई वीडियो ऑन टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर हमें दिन के अंदर कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, सो फर्स्ट गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, प्लस ऑन दिस कॉर्नर यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक। पहले आप वो वीडियो देखिए एंड देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। Today we will be talking about the proteins. So first we'll start what is protein. Protein basically building blocks होते हैं body के लिए. They also play a role like enzymes, hormones or transporter. So these all the roles they play. Basically जो protein होते हैं they are the long chain of amino acids. अब amino acids हमारे पास दो तरह के होते हैं. One is the essential amino acids, one are the non-essential amino acids. जो essential amino acids होते हैं those are the one जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, whereas non-essential can be produced within our body. So जो essentials होते हैं उन्हें हमें अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, and these essential amino acids are very important because they act with a master molecule जिसे हम mTOR बोलते हैं, और mTOR पाथवे होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसके साथ ये एक्ट करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. So essential amino acids are very important to intake through our diet. अब हमारे पास various source होते हैं like we have eggs, meat, dairy product, mushrooms, whey protein, casein. So these are some sources with high quality of protein. अब high quality of protein का मतलब है the protein which has all these essential amino acids. So ये सारे sources के through हम high quality of protein ले सकते हैं. So that हमारा मसल सिंथेसिस प्रोसेस इज इनहेंस्ड. जब भी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं देन इन द स्टमक इट ब्रेक्स डाउन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, देन इंटेस्टाइन के अंदर वो स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर टूटता है, देन द फाइनल प्रोडक्ट इज द अमीनो एसिड्स. और ये अमीनो एसिड्स थ्रू आवर ब्लड स्ट्रीम ये हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के पास जाते हैं एंड देयर they will form new muscle protein. So these amino acids are acting as a building block for the formation of new muscle protein. अब जो ये new muscle protein formation हो रही है through the building blocks और through the amino acids, इसको हम बोलते हैं muscle protein synthesis और MPS. Now इसकी एक reverse term होती है that is the muscle protein breakdown. उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो muscles होती है that break down into amino acids, और ये जो amino acids के अंदर break down हुई है these amino acids are reutilized to create new protein or the new muscle protein or to give energy. Now here if you see the graph, the green line represent the protein synthesis process whereas the dotted line here represent the protein breakdown process. अब जो प्रोटीन सिंथेसिस और जो प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोसेस है ये हैंड इन हैंड चलते हैं, दैट मीन्स दीज आर दी साइमल्टेनियस प्रोसेस, और ये 24/7 हमारे प्रोसेस चलते रहते हैं. दीज आर दी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मील लिया विच इज़ अ गुड मील, प्रॉपर बैलेंस मील जिसके अंदर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, सो अगर मैं एक मील खा रहा हूँ सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड I have a good supply of amino acids from that meal. अब मेरे पास good supply of amino acids हैं और increased insulin मेरा protein breakdown को suppress करता है. So at that time or in the first cycle you will see after having the meal the protein synthesis is more and the protein breakdown is less. अब जैसे ही मेरा फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा देन the supply of the amino acids will cut off and insulin will come back to its normal position. जिससे होगा क्या कि जो मेरा प्रोटीन ब्रेकडाउन है that will start increasing, you will see in the second cycle that will start increasing, और जो मेरा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है that will again start reducing. अब हम क्या कर सकते हैं आफ्टर से 4 और 5 आवर्स हम एक मील ले सकते हैं जो कि बैलेंस मील होगी रिच इन प्रोटीन, देन अगेन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीज होगा एंड अगेन दी प्रोटीन ब्रेकडाउन हमारा रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस साइकिल्स विल गो साइमल्टेनियसली, ये साइकिल हमारी चलती रहती है. अब नाउ इट डिपेंड्स
वट इज़ आर गोल, कि हमारा गोल क्या है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस साइकिल, और हम प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन साइकिल को बैलेंस करके रख सकते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू गेन मसल, तो हमें क्या करना है कि हमें जो मेरा प्रोटीन बैलेंस है उसको पॉजिटिव में मेंटेन करना पड़ेगा, और मेरा जो नाइट्रोजन बैलेंस है उसको पॉजिटिव मेंटेन करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन बैलेंस क्यों? क्योंकि मेरे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमोनिया और दी अमीनो एसिड्स दे हैव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो बेसिकली जो मेरा नाइट्रोजन इनटेक एंड नाइट्रोजन आउटपुट इज मेजर्ड टू कैलकुलेट दी बैलेंस बिटवीन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन बैलेंस में भी बोलते हैं, और इन सिंपल टर्म्स मैं प्रोटीन बैलेंस भी बोल सकते हैं। नाउ अगर मेरा मसल प्रोटीन बैलेंस और द नेट प्रोटीन बैलेंस इज पॉजिटिव, देन आई विल गेन मसल and then ultimately increase my power and strength and increase my muscle mass. अगर इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, लाइक जो हमारे पावर लिफ्टर होते हैं, और या फिर जो क्रॉसफिट में है, या ये जो जिम करते हैं, या फिर जो स्प्रिंटर्स हैं, सो वहाँ पे उनको मसल मास ज़्यादा चाहिए होता है। सो दे डू मेंटेन दी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और दे मेंटेन दी नेट प्रोटीन बैलेंस इन पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि जो मेरा बैलेंस है बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन, वो इक्वल कब होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर एन एंड्योरेंस एथलीट, जो कि से मैराथन एथलीट हो गया, साइकिलिस्ट हो गया, जो कि एंड्योरेंस के अंदर इन्वॉल्व है, उनको अपना बॉडी मास कम चाहिए होता है, बिकॉज दे वांट्स टू बी लाइट ऑन देयर फीट। उनको काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस तक भागना पड़ता है या साइकिलिंग करना पड़ता है। सो दे डोंट वांट ए बल्की बॉडी, उनको एक लाइट बॉडी चाहिए होती है। So what they do is they maintain a balance between the protein synthesis and the protein breakdown, जिससे कि उनका मसल मास कांस्टेंट रहता है, वो ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। Now what if the protein balance is negative, net protein balance is negative? ये कंडीशन कब आ सकती है? This condition comes जब हम बीमार होते हैं, और या फिर हम फास्टिंग पे हैं, या हम स्टार्विंग हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, और एजिंग के साथ भी ये आ सकता है। सो एट दैट टाइम जो हमारा मसल ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटीन सिंथेसिस, सो हम मसल लूज करना स्टार्ट कर देते हैं इन दैट टर्म्स। सो बेस्ड ऑन आवर गोल्स हम देख सकते हैं कि हमें प्रोटीन हायर रखना है या प्रोटीन इनटेक हमें लोअर साइड पे रखना है। उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, वन इज़ द डाइट एंड अदर इज़ द एक्सरसाइज। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ विद एक्सरसाइज, देन द प्रोटीन सिंथेसिस इज फर्दर इंक्रीज्ड। नाउ इफ यू कैन सी दिस ग्राफ, here the protein synthesis is increased because we have combined both the exercise as well as the nutrition. अब इसका रीज़न क्या है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी होती है, दे प्रिजर्व ATP मॉलिक्यूल्स फॉर परफॉर्मिंग दी फिजिकल वर्क। जो भी हमारा मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मेरी बॉडी ATP मॉलिक्यूल्स को प्रिजर्व करती है उस काम के लिए। सो वो क्या करती है कि जो मेरा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से मेरा प्रोटीन ब्रेकडाउन इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लेकिन जब मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, तब मैंने कोई भी अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दिया है, देन मेरा इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है आफ्टर एक्सरसाइज, मेरी ऑक्सीडेशन हैज़ इंक्रीज, द ग्रोथ हार्मोन्स हैव आल्सो इंक्रीज। सो बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स मेरा जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट आल्सो इंक्रीजेज। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं डाइट के साथ, देन ये फर्दर इसके अंदर इन्हेंसमेंट हो जाती है, देन फर्दर देयर इज अ इंक्रीमेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। नाउ इफ यू सी दिस ग्राफ, अगर इस ग्राफ में आप देखते हैं द ब्लैंक बॉक्स विच इज हाईलाइटेड इन रेड, इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हैज़ इंक्रीज अप टू 3 आवर्स, 3 घंटे तक मेरा प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हुआ है व्हेन आई एम इन फास्टेड स्टेट, यानी मैं उसको कुछ खाना नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल दिस सिंथेसिस प्रोसेस हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द 3 फैक्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। बट ऑन टॉप ऑफ इट, इफ़ आई गिव सम गुड प्रोटीन सोर्स, जो वाइट बॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं, अगर मैं उसके अंदर एक अच्छा प्रोटीन सोर्स दे दूँ, देन देर इज फर्दर अप्रोक्सीमेटली 30% इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम ए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आफ्टर योर वर्कआउट। और जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है दैट इज मैक्सिमम अप टू 3 आवर्स,
यानी 3 घंटे के अंदर अंदर हमें एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करना चाहिए, सो टू हैव ए वेरी गुड protein synthesis process or very enhanced protein synthesis process.